a very eminent personality with us, Dr. M.P. Punia. Dr. M.P. Punia is presently serving as Vice Chairman, All India Council for Technical Education since 2017. Prior to this, he remained as Director, National Institute of Technical Teachers Training and Research, NITTR, Chandigarh, for about 4.5 years. Dr. Punia is the recipient of Bharat Mata Award conferred by Indian Institute of Oriental Heritage and International Institute of Oriental Studies and Research, Kolkata. On behalf of NITTR Chandigarh, he received National Award for the Empowerment of Persons with Disabilities 2013 by the Honorable President of India. Dr. Punia also made significant contribution for the growth and development of technical education in the northern states of India and has conducted regional and in-country programs in collaboration with Colombo Plant Staff College for Technical Education, Manila, Philippines. He was the member of as many as more than 20 government bodies, autonomous bodies, universities in the states of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Delhi and Chandigarh while at NITTR Chandigarh. Dr. Punia emphasizes on quality education, good governance, e-learning towards digital India, go green environment, skill development, and has assisted to University Grants Commission, National Board of Accreditation, NAC, Consortium for Educational Communication, and Telecom Sector Skill Council of India for their academic achievements. Sir, we are more than honored to have you here, and I request you to give the convocation address. Principal Sir is requested to kindly accompany. So we welcome you, sir. Grewal, trustee of this very special institute of state of Punjab and ex-cabinet minister, उनके साथी श्री प्रताप सिंह जी, सम्माननीय इंद्रपाल सिंह जी, सम्माननीय गुरचरण सिंह जी, डॉक्टर वाई.एस. बरार, डीन प्लानिंग एंड एकेडमिक डेवलपमेंट, that is IKGTU, Professor Sehajpal ji, dear friends, some of the parents are here, faculty members and all family of Guru Nanak Dev Engineering College, लुधियाना। पहले तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने 3-4 बातें विशेष इस संस्थान की देखी। I was connected with this institute since years. In 2016 I came here in the same type of function, that was convocation. पर आज मेरे को विशेष ऊर्जा इस संस्थान में दिख रही है, लग रही है। इतना बड़ा कन्वोकेशन कभी भी मैंने अटेंड नहीं किया था। और ऐसे लग रहा है कि इस भव्य समारोह में जो सुगंध गुरु नानक देव जी की होनी चाहिए, जो आशीर्वाद उनका जिस तरह से और अनुशासन बच्चों में मेरे को देखने को मिला, ऐसे लगा साक्षात गुरु नानक देव जी आज यहाँ पे विराजमान हैं। Not a single incident of any indiscipline. When thousands of students are here, they are waiting probably since morning. कहीं पे भी आपने असमंजस या मेरे को अनुशासनहीनता नहीं दिखी। आप इसको बनाए रखें जीवन में। देश को आप जैसे नवयुवकों की, आप जैसे टैलेंटेड बच्चों की जरूरत है और आपने जो यहाँ पे शिक्षा ली है वो अपने जीवन में उतारना, इसको बनाए रखना। आप बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं, आप साधारण बच्चे नहीं हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप पंजाब में जन्मे हैं या भारत में जन्मे हैं या इस इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के अंदर, आज भारत देश के अंदर आप जैसी उम्र के जो बच्चे हैं, विशेष रूप से 18 से 23 साल की उम्र के बच्चे हैं, ग्रेवाल साहब आपके लिए भी ये मैं सूचना दूंगा, अगर 100 बच्चे इस देश में 18 से 23 साल की उम्र के हैं तो उसमें से 27 बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉलेज में आने का मौका मिलता है या कॉलेज का मुंह देखते हैं, यूनिवर्सिटी का मुंह देखते हैं।
100 में से 73 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके बारे में अपने को पता ही नहीं है कि उन्होंने स्कूल करने के बाद या स्कूल के टाइम कहाँ पे वो बिछड़े, क्या काम कर रहे हैं, हमें पता नहीं। तो आप उन 27% बच्चों में से है जिनके ऊपर माता पिता ने, देश ने, इन शिक्षकों ने आप लोगों को इतना समय लगाया है और आपको एक उच्च श्रेणी का नागरिक बनाया है। कंट्री इज हैविंग इनॉर्मस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। प्लीज प्रूव दैट वन। आप इस चीज को प्रूव करेंगे कि हम स्पेशल हैं, हम गुरु नानक देव जी के सेवक हैं, हम उनके रास्ते पे चलने वाले बच्चे हैं। ये आप लोगों को प्रूव करना है। और दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, जरूरी नहीं कि आप पंजाब में रहें, जरूरी नहीं कि आप जो है दिल्ली में रहें, जरूरी नहीं कि आप भारत के किसी भी कोने में रहें, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, प्लीज प्रूव that we people are something different. Our talent, our confidence level, our delivery, our core competencies, our values, our sanskaras, our traditions are something different. You please prove that one. World's population is 7 billion and out of 7 billion we Indian are around 1.4. 700 करोड़ की जो दुनिया की आबादी है उसमें से 140 करोड़ अपन हैं। अगर 700 में 140 का भाग दो तो संख्या जो मिलती है हमें वो मिलती है 5। इसका मतलब ये है कि इस धरती पे हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। आप लोगों को प्रूव करना है कि आपकी प्रेजेंस दुनिया के हर कोने में दिखे और वैल्यू, संस्कार, फैमिली का सिस्टम आप लोगों को मिला है। इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर बिहेवियर, इन योर कैरेक्टर। आप साधारण ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स ऑफ दिस कंट्री। और आपकी जिस प्रेजेंस की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में, किसी के चेहरे पे, किसी के नागरिक पे अगर हंसी खुशी आती है, वी इंडियंस फील प्राउड that the children to whom we people have groomed, they are doing something very amazing work for the betterment of this country. और उस काम के बदले में, इन संस्कारों के, ट्रेडिशन के बदले में, आपकी योग्यता के बदले में इस देश के लिए डॉलर्स लेके आना। Country will be growing only if we will be having dollars with us. The Honorable Prime Minister of India is dreaming to have our economy $3 trillion and in time to come it may become 5. लेकिन अपना पड़ोसी जो चाइना है उनकी $15 ट्रिलियन है और 15 को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 वाला 15 को ओवरकम करने में तो मेरे को लगता है ये ड्रीम ही है। 3 से जब 6 होंगे तो वो 15 से 30 भी तो होगा, वो खाली थोड़ी बैठे हुए हैं। Only we people can do if our youth who are very good in different languages and lot of energy you people are carrying, अगर इस एनर्जी को यूजफुल आउटकम में अगर कन्वर्ट कर दे तो देश का सपना जो है बहुत आगे बढ़ने का, गौरवान्वित होने का, वो सपना पूरा हो सकता है। आप उड़े, मेरी इच्छा ये है कि आप उड़े, जीवन में बहुत आगे बढ़े, लेकिन आप पांव अपने जमीन पे रखना। इस धरती को, इस पंजाब की विशेष भूमि को, इस संस्थान को, जिन शिक्षकों ने आपको पढ़ाया है, अपने माँ बाप को, दादा दादी को, गांव को 70% से कर रहे हैं। 70% गांव है, हमारे पॉपुलेशन 70% है गांवों की और 70% बच्चों को आपने प्रतिनिधित्व दिया है यहाँ पे। और वो भी 1956 से 1947 में देश आजाद हुआ था। 9 साल में वे आजाद हुए थे और यहाँ के पॉलिसी मेकर्स, यहाँ के प्लानर्स, यहाँ के चैरिटी करने वाले जो हमारे विद्वान लोग थे, इस परिवार के जो लोग थे, जो ये अपना जो NSCT जो एक ट्रस्ट है, वो प्लानर्स ये प्लान कर रहे थे कि हम गांव के बच्चों को आगे कैसे लेके आए। कितना बड़े गौरवशाली लोग थे, उनके एहसानों को कभी भूलना मत। कभी भी अकेले उड़ने की कोशिश मत करना। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, टीम में काम करना। ये सब बच्चों के लिए संदेश है। और घमंड मत करना कि आपको बहुत नॉलेज मिल गया है। ये जो 4 साल की डिग्री आपने ली है, ये बहुत आगे लेके नहीं जाएगी आप लोगों को। ये सिर्फ इतना सा एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि नाउ यू आर रेडी टू सर्व द सोसाइटी, नाउ यू कैन ब्रिंग द हैप्पीनेस ऑन द फेसेस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री और द ग्लोब। आप टेक्निकली साउंड है, आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हुए हैं और सोशली आप रेलेवेंट हुए, लेकिन ये आगे नहीं लेके जाएगा बोर्ड। जब तक आप दुनिया जिस गति से परिवर्तित हो रही है, उस गति के हिसाब से आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक ये ज्ञान आपको आगे नहीं लेके जाएगा। मेनी पीपल विल बी सेइंग टू यू, और कल भी कहेंगे जब आप रात पे जाओगे कि आपको कुछ नहीं आता है। मेनी पीपल विल बी सेइंग। तब इन शिक्षकों को याद करना कि मेरे को 40 टीचर्स ने पढ़ाया, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को कुछ नहीं आता। प्राउड करना, याद करना अपने शिक्षकों को, बिकॉज दे वर योर मेंटर्स, दे हैव सपोर्टेड यू, दे हैव गाइडेड यू। और आज जो है आप इन शिक्षकों की वजह से है, लेकिन साल भर बाद ये शिक्षकों वाला ज्ञान भी शायद आपके काम नहीं आए। और लोग अगर कहेंगे आपको एबल टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी,
परिवर्तन करना। पर आपको मैं कह रहा हूं कि कभी अकेले उड़ने की कोशिश मत करना। 5, 7, 10, 15 मिलके जो है टीम में काम करना, और टीम में अगर काम करना आपने सीख लिया, टीम की लीडरशिप देना सीख लिया आपने, तो आपको जीवन में कोई नहीं रोक पाएगा। तो शिक्षा है, शिक्षा को मां सरस्वती का एक जो है आदर्श मानते हैं। मां सरस्वती जो है शिक्षा की आदर्श है, और उनकी सवारी जो मां सरस्वती की है दैट इज सारस गीज। गीज अगर आपने कभी देखा हो, शाम के टाइम नोट करना, गीज शाम को जब उड़ते हैं, सारस पक्षी जब उड़ता है तो एक टीम में उड़ता है। एक वी शेप में उड़ते हुए पक्षी आपको शाम के टाइम दिखते हैं। सारस पक्षी की एक विशेषता होती है कि अगर भारत में तापमान बढ़ रहा हो तो उड़ के ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जहां पे तापमान कम है। दे प्रेफर लोअर टेम्परेचर। और कभी भी हिस्ट्री में ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि वो 9000 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की हो और रास्ते में फैसला होता है, वो उनका टीम लीडर होता है। वो उनको गति देता है, उनको दिशा देता है, किस स्पीड से उड़ना है, कहां पे रुकना है, किस ऊंचाई पे उड़ना है। वो टीम लीडर सबको आगे लेके चलता है। वो वी पे इसलिए उड़ते हैं कि हवा का रेजिस्टेंस जो सबसे आगे वाले को ज्यादा होता है, पीछे वाले को कम होता है, उनको थकावट कम होती है। तो एक तो टीम में काम करोगे, उनसे सीखने की बात, अगर टीम में काम करोगे आपकी ऊर्जा कम लगेगी, आपको कम प्रयास से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब ये सारस उड़ते हैं, उड़ते उड़ते जब रास्ते में जाते हैं, आप देखना कुछ आवाजें निकालते हैं। वो जो आवाज निकाल रहे हैं सारस, दे आर मोटिवेटिंग देयर टीम लीडर। वो टीम लीडर को कहते हैं कि आप आगे बढ़ते जाओ, तुसी बढ़ो, असी आपदे ना रह गए, असी सपोर्ट करने वास्ते आपके ना रह गए। वो हमेशा उसको टीम लीडर को मोटिवेट करते हैं। आप भी जीवन में बच्चों, अगर साथियों को आपने, साथियों के अच्छे काम के लिए ताली बजाना जिस दिन आपने सीख लिया, किसी की पीठ थपथपाने आपने सीख ली, यू विल बी सक्सेसफुल। सबसे काम मुश्किल काम होता है जीवन में किसी की बड़ाई करना, अच्छे काम की बड़ाई करना जो है सबसे मुश्किल है। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया, देयर इज नो लिमिट ऑफ योर कैरियर। आपकी जो जिस गति से जिस ऊंचाइयों पे छुएंगे आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जब ये उड़ते हैं पक्षी, इतनी लंबी जो है यात्रा करनी होती है, रास्ते में कोई पक्षी इनका साथी बीमार भी हो जाता है, थक भी जाता है, तो ये तब क्या करते हैं पक्षी, सारे के सारे उस जमीन पे जो है आ जाते हैं। और ये वापस तब तक उड़ना नहीं शुरू करते जब तक या तो वो पक्षी मर जाए या ठीक हो जाए। बीच में छोड़ के कभी भी ऐसा नहीं कि उसको बीच में छोड़ के चले गए या बीमार को छोड़ के चले गए, ऐसा कभी नहीं करते। आपको ये भी लेसन लेना है कि जिस टीम में जिस साथियों के साथ काम कर रहे हो, अगर आपके साथी की आंखों में आंसू हैं तो आपकी आंखों में उससे पहले आंसू आने हैं। ऐसे बच्चों की, ऐसे विद्यार्थियों की, ऐसे युवाओं की देश को जरूरत है। आप जीवन में गीज बनना, गीज बनने की हमेशा कोशिश करना। चलते चलते जब वो गीज उड़ते हैं तो मैं कह रहा था टीम लीडर को डिसीजन लेने पड़ते हैं, रिस्क ज्यादा होता है, उसको थकावट भी ज्यादा होती है। तो चलते चलते क्या करता है, गीज जो है, लीडर जो होता है वो सबसे पीछे चला जाता है, दूसरा उनका लीडर बन जाता है। इट मीन्स दे आर हैविंग फेथ ऑन ईच अदर, कि अगर मैं लीडर नहीं हूं, दूसरा भी बना तब भी उसको उसी गति से लेके जाएगा। तो ये भी अपने को गीज से समझने की जरूरत है, और विशेष रूप से अपने को जीवन में उसी भूमिका में उतरना है अगर जीवन में कामयाब होना है। तो मैंने यहाँ के इस संस्थान में आके और विशेषता देखी, सिर्फ ये नहीं कि अनुशासन देखा मैंने या बहुत बड़ी विद्यार्थियों की टीम देखी, मैंने एक विशेष बात देखी कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं, विजनरी पीपल हु आर रनिंग दिस इंस्टीट्यूट, देयर इज नो कंपैरिजन। आज शिक्षा हमारा व्यवसायीकरण इसलिए हुआ कि शिक्षा को चलाने वाले लोग वो आए जिनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था, and that's why this type of situation came. But I am really very happy the type of leadership which is available. इनका जो अनुभव है वो अपने आप में एक मिरेकल है। इंसान की पहचान तो 5 मिनट में ही हो जाती है, आपके 500 दिन साथ में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो कम से कम आपके साथ 5 घंटे रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड that what sort of leadership you people are giving, और किस तरह से इस संस्थान को आगे बढ़ाएंगे। मेरे को बहुत विश्वास है कि आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। आप मेरे हिसाब से ये संस्थान देश के टॉप जो 250 संस्थान है, जो 10,000 इंस्टीट्यूट्स को हम लोग गवर्न कर रहे हैं, उनमें से पहले 250 जो संस्थान है उसमें से सिर्फ गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम है। ये प्राउड की बात है। 250 क्यों, 50 में भी तो आ सकते हैं। इस तरह से टीम साथ में काम करेगी, 50 में भी तो आ सकते हैं, आना है। बच्चों एक बात और मैं कहूंगा आपको कि जीवन में जब भी मौके मिले, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले, आप आज यहाँ से जा रहे हैं, अच्छे से जा रहे हैं, और जीवन में बहुत ज्यादा मदद करने वाले लोग भी नहीं मिलेंगे जितने टीचर्स और साथी यहाँ पे थे आपके। आपको चैलेंज खुद को लेने हैं, खुद को समाधान निकालने हैं। जब आपको जीवन में मौके मिले, इवन टुमारो इफ यू आर गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी, उस मौके को छोड़ना मत।
मौके कभी वापस नहीं आते हैं। एक किसान था, एक छोटी सी बात बताऊंगा। ग्रेवाल साहब मैं टाइम लूंगा, दिल्ली से आया हूं, सुबह 4 बजे जगह था, और इसी बात के लिए कि मैं विद्यार्थियों से संवाद करूंगा, थोड़ा टाइम आपकी परमिशन से मैं लूंगा जो है ना। तो जो 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 मौके मिलने की बात है, अपॉर्चुनिटीज की बात है, उसको छोड़ना मत। मैं ये बात कह रहा था, एक किसान था, गांव में किसान था, किसान की बेटी शादी योग्य थी। पड़ोस में एक लड़का रहता था, वो किसान के पास आया कि मेरे को आपकी बेटी से शादी करनी है। किसान ने कहा जरूर, मेरी बेटी शादी योग्य है, मैं करूंगा शादी, पर मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी आपको। मैं एक चैलेंज दूंगा, अगर चैलेंज को आप जीतोगे मैं मेरी बेटी की शादी आपसे करूंगा। लड़का बोला बताइए क्या चैलेंज है। किसान ने कहा कि मेरे घर के पिछवाड़े में 3 बैल बंधे हुए हैं, मैं एक एक बैल को खोलूंगा, किसी एक बैल का पूंछ आपको पकड़ना है। अगर आपने पूंछ पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली, मैं मेरी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा। द बॉय वाज वेरी हैप्पी। गांव में तो सारे दिन यार हम पूंछ पकड़ते हैं, कभी गाय, कभी भैंस, कभी जो है बैल, क्या दिक्कत है, पूंछ पकड़ लूंगा मैं। दोनों के अंदर आपस में समझौता हो गया। किसान घर के पिछवाड़े में गए, बैल 3-4 महीने से बंधे हुए थे लगातार, और 3-4 महीने बंधे हुए बैल को किसी को खोलो आप, तो यू कैन इमेजिन व्हाट सॉर्ट ऑफ इनडिसिप्लिन, व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी दे आर हैविंग। जैसे किसान ने बैल को खोला, बहुत तेजी से बैल जो है भगा वहां से। लड़के ने सोचा कि यार इस बैल की अगर पूंछ के हाथ लगाया तो जीवन ही नहीं बचेगा। स्वयंवर तो तब होंगे जब जीवन बचेगा, जब जीवन ही नहीं होगा तो स्वयंवर काय की शादी होगी। बट ही थॉट नो प्रॉब्लम, जाने दो इस बैल को, अनदर 2 अपॉर्चुनिटीज आर देयर, 3 में से एक को पकड़ना है शादी करने के लिए, तो आई वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। उस बैल को जाने दिया। अगेन फार्मर हैज गॉन टू बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस, ही हैज ओपनड अप अनदर ओक्स। इस बार वाला बैल और भी ताकतवर, बड़े बड़े उसके सींग, बहुत ही ऊर्जावान। जैसे ही उसको खोला तो ये और ही ज्यादा अनुशासनहीनता करता हुआ दौड़ा बहुत तेजी से। लड़का इस बार भी घबरा गया कि ये सौदा भी जो है बुद्धिमानी का नहीं है, बट स्टिल ही वाज हैविंग कॉन्फिडेंस बिकॉज़ अनदर थर्ड अपॉर्चुनिटी इट इज अवेलेबल, आई विल अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। उसको भी जाने दिया। इस बार तीसरी बार किसान जो घर के पिछवाड़े में गया, इस बार बैल को खोला, तीसरे को। ये वाला बैल बिल्कुल ही धीरे धीरे आ रहा था, बिल्कुल धीरे धीरे, थका हुआ बिल्कुल जो है। लड़का बड़ा खुश हुआ कि यार अननेसली मैं आई वाज टेकिंग रिस्क, इसको तो मैं किसी तरह पूरे बैल को ही पकड़ लूंगा, पूंछ पकड़ना क्या। जैसे वो धीरे धीरे चलते चलते उसके पास से निकलने लगा, वो दौड़ के उसे पूंछ पकड़ने के लिए उसने छलांग लगाई। इस बार उस बैल के पूंछ ही नहीं था, वो बिना पूंछ का था। जब वो उछल कूद कर रहा है, देन अपॉर्चुनिटी इज नॉट देयर। जब अपॉर्चुनिटी थी तो उसने रिस्क नहीं लिया। इफ यू आर हैविंग ए रेलवे रिजर्वेशन टिकट, ट्रेन इज एट 9 o'clock इन द इवनिंग, आप 9:30 बजे जाओ स्टेशन पे, जाके स्टेशन मास्टर को कहो सर मेरे पास जो है रिजर्वेशन कराया हुआ है, मेरे को ट्रेन में बैठाओ। ट्रेन बैठाएगा क्या, ट्रेन इट हैज गॉन। अपॉर्चुनिटीज कभी भी किसी का इंतजार नहीं करती। कभी भी मौके चूकना मत, कभी भी मौके छोड़ना मत। लेकिन ये सारे जो मैं गुणों की बात कर रहा हूं, सोशली रेलेवेंस की बात कर रहा हूं, टेक्निकली साउंड होने की बात करता हूं, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ आप लोगों से नहीं हो पाएगा जब तक हमारे जो आगे विशेष हमारे जो चेहरे और शिक्षक जो बैठे हुए हैं, जब तक इनका रोल जब तक वो ये प्रोफेशन को लव नहीं करेंगे, तब तक आप लोग भी अपने प्रोफेशन से लव नहीं करेंगे। आप में प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा जब तक हम शिक्षक जो है इसको लव नहीं करेंगे। और समाज का विश्वास जो शिक्षक पे, वो बहुत अहम विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास है। सोसाइटी इज सर्वाइविंग, सोसाइटी इज इन एक्शन, सोसाइटी इज इन हार्मनी बिकॉज वी टीचर्स आर हियर इन द सोसाइटी। मेरा जो परिचय दिया जा रहा था तो मेरा नीटर के बारे में, चंडीगढ़ के बारे में परिचय दिया गया। आई रिमेन्ड इन चंडीगढ़ फॉर 4.5 years। और जिस संस्थान का मैं डायरेक्टर था वो शिक्षकों को प्रशिक्षण देती थी। शिक्षक को प्रशिक्षण देना इज वेरी डिफिकल्ट। और 9 स्टेट्स मेरे दायरे में थे, जम्मू कश्मीर से लेके और यूपी तक के 9 स्टेट के शिक्षक को हम प्रशिक्षण देते थे। आई वॉज स्टेइंग इन दैट कैंपस। और जहां कैंपस में मेरा घर था, मेरे पड़ोस में भी एक प्रोफेसर साहब रहते थे। प्रोफेसर साहब ने एक कुत्ता पाला हुआ था, और एक बार उनको 6-7 दिन के लिए कोई ट्रेवल पे जाना था, जो है लंबे टूर पे फैमिली के साथ जाना था। While you are traveling, you can carry everything, पर कुत्ते को ले जाना चाहिए। हवाई जहाज में कुत्ते को कैसे ले जाओगे? They are not allowing। ट्रेन में they are not allowing। So प्रोफेसर साहब को जब जाना था तो उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की, कैन यू टेक केयर ऑफ आवर डॉग फॉर 7 days। मैं किसान परिवार से हूँ, मेरे को पता है गाय को कैसे देखभाल की जाती है, बैल की कैसे की जाती है, भैंस की कैसे की जाती है। आई डोंट नो हाउ दिस डॉग कैन बी केयर। कुत्ते तो पावरफुल है, कुत्ते तो कहीं मूव हो सकते हैं, उनकी देखरेख की जरूरत क्या है। They are self motivated, कहीं भगते हैं, पूरे देखते हैं ना सारे दिन जो है। But because neighbor was requesting, we have taken that challenge। हमने कहा
अगर पड़ोसी हमारे से कह रहे हैं तो हमें जो है इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। वो छोड़ गए हमारे पास, चले गए। एवरी आवर वी वर गेटिंग द टेलीफोन कॉल, हमारा कुत्ता कैसे है, कुत्ते को बिस्किट जो हमने स्पेसिफाई किए वो खिला दिए या नहीं खिलाए, व्हाट सॉर्ट ऑफ शैम्पू यू आर यूटिलाइजिंग व्हाइल यू आर ऑफरिंग बाथ टू डॉग, या पानी का टेम्परेचर कितना रख रहे हो सर, जो है उसी टेम्परेचर पे पानी से नहलाना जो हमने स्पेसिफाई किया। फॉर 7 days continuously we were getting the telephone calls. I am in teaching profession since last 30 years and thousands of boys and girls it has been taught by me, that too in higher education. Higher education में जब लड़के लड़कियां आते हैं, they are 18+, even managing them it's very difficult. हॉस्टलों में रहते हैं, झगड़े करते हैं, शरारतें करते हैं, lot of problems are coming. पिछले 30 सालों में जो मैं कह रहा हूं हजारों लड़के लड़कियों को मैंने पढ़ाया है, I never got any telephone call from any parent कि मेरी बेटी कैसे है या मेरा बेटा कैसे है, खाना ठीक से खा रहे हैं या नहीं खा रहे, जो संस्कार आपको देने चाहिए या उनको शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की देनी चाहिए वो दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। नेवर आई गॉट एनी टेलीफोन कॉल फॉर डॉग, इवन माय नेबर वाज नॉट हैविंग एनी फेथ ऑन मी कि मैं पाल पाऊंगा या नहीं पाल पाऊंगा। बट जो लड़के लड़कियों के लिए पेरेंट्स का इतना विश्वास है हम लोगों पे, I'm very happy that I'm a teacher, I'm in teacher community and the faith which we people are having. देखो कुत्ते के लिए विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए हमारे पास कितना विश्वास है। ये शिक्षक हमारे जो महानुभाव बैठे हुए हैं, आप कभी ये विश्वास तोड़ मत देना। जिस दिन ये विश्वास टूट गया शिक्षक पे से समाज का, the society won't be surviving. Again I am saying the society is intact because we teachers are there. ये politicians या administrators या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सोसाइटी नहीं चल रही है, आर्मी सोसाइटी नहीं चल रही है, ये सोसाइटी बिकॉज वी टीचर्स आर देयर। और कभी इस विश्वास को भंग मत कर देना, कभी भी अपने चरित्र पे दाग मत लगा लेना। सुकरात का नाम सुना होगा आपने, सुकरात वाज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट टीचर, और टाइप ऑफ एजुकेशन विच दे हैड दैट टाइप, इट वाज नॉट दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। इस एजुकेशन में एक टीचर बोलता है, बच्चे सुनते हैं, इट इज वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी या पूरे विश्व की जो शिक्षा व्यवस्था थी, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जो गुरुकुल भी होते थे या सुकरात का जो मॉडल था शिक्षा का, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आप आर्ग्यूमेंट करते थे एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यूज्ड टू विन। टॉपिक होता था, टॉपिक पे टीचर कुछ बताता था, बच्चे आर्ग्यू करते थे, उसके बेसिस पे डिसीजंस होते थे। एंड आई एम सेइंग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यूज्ड टू विन। इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन टीचर और उनके बीच में था, एंड द टाइप ऑफ एजुकेशन व्हिच वाज देयर, दैट वाज रियली ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम्स। उस कन्वर्सेशन का आउटकम क्या रहा, इस बात पे थी। वन डे दैट टाइप ऑफ क्लास वाज देयर, और सुकरात के साथ बच्चों का आर्ग्यूमेंट हुआ। क्लास के बाद जो है बच्चे जीते, क्लास के बाद एवरीवन केम, इवन सुकरात जी वाज वेरी हैप्पी दैट स्टूडेंट्स हैव डिफीटेड मी। और जब डिफीट करने लग जाते थे बच्चे टीचर को, उस टाइम गुरु कहता था कि अब आप समाज में जाइए, अब आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है, यू कैन मूव। उस तरह का रिजल्ट उनका आता था। कोई ये एग्जाम नहीं होता था 8 ट्यूशन वाला, 8 में से 5 करने, 5 में से 2.5 आपके सही है, हम आपको सीजीपीए 6.5 दे रहे, ऐसा नहीं था। तो जैसे ही वो क्लास खत्म हुई, स्टूडेंट्स टीचर्स बाहर आए, एवरीवन वाज डांसिंग, इवन सुकरात जी वाज पार्टिसिपेटिंग विद देम। और उन्होंने एक बड़ा सुंदर शॉल पहन रखा था, सफेद शॉल सुकरात जी ने पहन रखा था, 6 गज लंबा जो है। उस शॉल पे कोई छोटा सा धब्बा कहीं पे लग गया। जैसे ही किसी बच्चे ने देखा, साहब जब डांस कर रहे थे, किसी ने धीरे से सुकरात जी को आगे कहा कि सर सम ब्लैक स्पॉट इट इज देयर ऑन योर शॉल। सुकरात जी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा आया, अगेन समवन वाज पॉइंटिंग आउट, थर्ड केम पॉइंटिंग आउट। फाइनली सुकरात जी सेड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मेरे 6 गज लंबा सफेद मैंने इतना सुंदर जो है शॉल पहन रखा, नो वन इज एप्रिशिएटिंग, लेकिन छोटा सा ही दाग लग गया। Everyone is seeing that one. Our character is just like that white shawl. उसके ऊपर छोटा सा भी दाग इसको मत लगा देना। ये बच्चे हमें कॉपी करते हैं। We are the role models, and if you are role model, then certainly all small things, even what we are wearing, how we are moving, in what way we are standing inside the class, what type of mobile we are using, हर चीज हमारी कॉपी करते हैं बच्चे जो है। ऐसी कॉपी मत करवा देना जो जीवन में उपयोगी नहीं हो। If you are not ready, if your faces are not smiling, if you are not prepared to take the class, never go in the class. If you are going in the class, do justice with the students. आप उनके साथ न्याय करिए। आप नहीं पढ़ाएगा hardly matters, पर कभी भी इन बच्चों को गलत मत पढ़ा देना। The wrong contents which has been delivered by the teachers, which has been inserted into the hearts of the children, no eraser is available in this universe जो उन contents को erase कर सके।
आपने सर्किट डिजाइनिंग पढ़ाया, इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट डिजाइनिंग गलत पढ़ा दिया, और वो बच्चा जाके कोई एयरक्राफ्ट का सर्किट डिजाइनर बन गया लाइफ में, इट कैन स्पॉइल द लाइफ ऑफ 1000 पीपल। एयरक्राफ्ट आर कैरिंग सम 1000 पर्सन। एक गलत चीज पढ़ाएगी आपकी, डॉक्टर कैन किल 1 पर्सन, बट जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आपके हाथों निकल रहे हैं, दे कैन स्पॉइल द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कभी गलत मत पढ़ाना। क्लास लेने के बाद, जब आप क्लास से बाहर निकलते हैं 1 घंटे के बाद, इफ यू आर फीलिंग गुड दैट टुडे माय क्लास वाज वेरी गुड, द वे आई डिलीवर्ड माय कंटेंट, द प्लानिंग ऑफ माय कंटेंट, द वे आई रिप्लाइड द क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट, अगर अच्छा हुआ हो क्लास, आपका खुशी होती हो, यू आर ए गुड टीचर। बट अगर बुरा लगता हो क्लास लेने के बाद कि माय क्लास वुड हैव बीन समथिंग बेटर, और अच्छा होना चाहिए था, मेरी प्लानिंग ठीक नहीं थी, मेरी तैयारी ठीक नहीं थी, अगर आपको ऐसा लगता है, देन यू आर एबल टू नो योर शॉर्टकमिंग्स, यू आर हैविंग ऑल द कैपेबिलिटीज ऑफ बिकमिंग ए वेरी गुड टीचर, क्योंकि कमियां जानते हैं आप। लेकिन अगर आप थर्ड कैटेगरी में हैं, जिसके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लास अच्छी हुई, खराब हुई, लर्निंग हुई या नहीं हुई, आपने कुछ पीले नोट्स लिए, आप चले गए क्लास में, 60 मिनट आपने पढ़ाया कि 30 तारीख को तनख्वाह लेनी है, बच्चों ने इसलिए अटेंड किया कि उनको डिग्रियां लेनी है, अगर आप उस कैटेगरी में है, बेटर यू लीव दिस प्रोफेशन। इस देश में ऐसे शिक्षकों की जरूरत नहीं है, वो आर नॉट कंसर्न, वो आर नॉट लविंग दिस प्रोफेशन, और बच्चों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर नहीं उतर रहे हैं, इस प्रोफेशन में मत रहना। अगर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, एक बात पेरेंट्स से कहूंगा कि इन बच्चों पे प्रेशर मत डालना। एंड सेकेंड थिंग, कंटिन्यूसली कीप कम्युनिकेशन विद दी चिल्ड्रन। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल साहब यहाँ पे आया हूँ, कुछ हम लोगों ने भी इनिशिएटिव ले रखे हैं, भारत सरकार ने ले रखे हैं। कोई भी बच्चा जिसका अच्छा आइडिया हो और वो स्टार्टअप की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हो, ये नौकरियों के नौकरी आपकी बाई प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज, समथिंग स्पेशल विद यू। अगर हाथ में आपके कोई हुनर है, दिल आपका सोसाइटी से कनेक्टेड है, और दिमाग जो है कुछ प्लानिंग कर सकता है, कुछ क्रिएटिविटी आपके पास है, दिस सोसाइटी विल फॉलो यू। आप कभी भी लाइन में मत खड़े होना, सीधी लाइन में मत खड़े होना। अगर सीधी लाइन में खड़ा भी होना हो तो सबसे आगे खड़ा होना, पीछे मत खड़ा होना। एवरेज को नो वन इज रिकॉग्नाइजिंग। So principal sir, some good ideas these students are having, and if it can be converted into useful product, particularly for the benefit of the rural area, for one idea, we people are ready to give some 10 lakh rupees to help these children. आप लेके आइए, आइडियाज आप जो है आगे बढ़ाइए, हम इन लोगों की हेल्प करेंगे। क्या ये बच्चे, आज हमारी बात हो रही थी कि इतने बच्चों को नौकरी कहाँ पे देंगे, गवर्नमेंट जॉब कहाँ पे देगी। हमारे पास करीब 6.5 लाख गांव है इस देश के अंदर, और करीब 6.5-7 लाख इंजीनियर हमारे हर साल निकलते हैं। क्या एक एक गांव में एक एक बच्चा जो है, और जो गवर्नमेंट कह रही है कि किसान की आमदनी हमें डबल करनी है, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, नहीं हो सकती। पर मैं चैलेंज आप लोगों को ये दे रहा हूं कि क्या आपके आइडियाज से, क्या आपके स्टार्टअप से गांव, जो किसान की आमदनी, पूरे गांव की आमदनी डबल कर सकते हो क्या। गांव में हमारा पानी का भी कंजर्वेशन है, बिजली का भी कंजर्वेशन है, वहां पे बढ़ई भी काम करता है, वहां पे आपका जो है बिल्डिंग की प्लानिंग भी होती है, गांव में कोई मटेरियल भी जो अच्छे कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या आप डिजाइन कर सकते हो, क्या आर्किटेक्चर के बच्चे कुछ घरों के इंटीरियर ठीक कर सकते हो। लुधियाना में कोई अगर सिविल के बच्चे ऐसे आइडियाज लेके जाते हैं, वो अगर स्टार्टअप बनते हैं, वो अगर जॉब क्रिएट करते हैं, और लुधियाना में आया हुआ गाँव छोड़ के आया व्यक्ति अगर वापिस उस गाँव में चला जाए कि मेरा गाँव अच्छा बन गया है, दैट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ऐसा हमारे बच्चे कर सकते हैं। ऐसा करिए। प्लानिंग के लिए हम काफी सीटें देंगे। अगर प्लानिंग आप ब्रांच शुरू करते हैं, कंट्री में सिर्फ सैकड़ों बच्चे ही ऐसे जो आर्किटेक्चर के साथ प्लानिंग में निकल रहे हैं, प्लानिंग की सीटें देने के लिए तैयार हैं। आप लोग इसके लिए लीजिए ऑनलाइन ओडीएल, जो 27% ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो बता रहा हूं, कंट्री इस प्लानिंग को है 50%। अमेरिका क्यों आगे है? अमेरिका के अंदर 18 से 23 साल के अगर 100 बच्चे तो 87 बच्चों को कॉलेज में जाने का मौका मिलता है। जापान में 70 को मिलता है, यूके में 70 को मिलता है, चाइना के अंदर 60 को मिलता है, मलेशिया में 65 को मिलता है, हमारे सिर्फ 27 में ही मिलता है। क्या आप ऐसी जो 50 साल 60 साल का अपना इतिहास हो गया है, क्या आप देश का ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने में मदद कर सकते हैं क्या? और विशेष रूप से ऑटोनोमस कॉलेजेस को हम ओडीएल भी ऑनलाइन सारे कोर्सेज देंगे। द क्वालिटी फैकल्टी मेंबर्स व्हिच यू आर हैविंग यू यूटिलाइज। आज रेलवे 24 घंटे काम करती है, अस्पताल 24 घंटे काम करता है, बिजली 24 घंटे काम करती है, व्हाई नॉट आवर एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स? क्या इसको 24 घंटे चला सकते हैं क्या अपन? ऐसा कोई मॉडल आप जो है दे सकते हैं क्या सैजपाल सिंह जी, which can become the role model of the country? Best wishes to everyone. It's a very, very special day. Always I'll remember this day. Best wishes. Do something very, very special. Bring happiness everywhere. Change the world. Best wishes.